A point charge is located at the origin at point A comma A. The electric field is E1. At point minus A comma A, the electric field is E2. And a point minus A comma minus A, the electric field is E3. Choose the correct options. So they are telling you that point charge is located at the origin. Just is the origin. Point charge is located at the origin. Now, at point A comma A, electric field is E1. Can I say this will be the direction of the electric field? At point minus A comma A, तो माइनस ए कॉमा ए यहाँ पर आएगा ना. The electric field is E2. You know, it is directed away from the positive charge. थर्ड वाला क्या है? माइनस ए कॉमा माइनस ए. The electric field is E3. ठीक. क्या कहना चाह रहा है ये? Which of the following is correct with the options? अच्छा ठीक है, ये मैथमेटिकल है. कौन बताएगा आंसर क्या है? E1 dot E2 should be 0. हाँ बेटा, ये 0. Both are correct. हाँ, E1 dot E2 is 0 because this is perpendicular. And E1 dot E3 cross E3 should also be 0. Two vectors are parallel, they should be 0. So both are correct, right? बराबर है ना भाई? हेलो, ये तो इजी है. Now we come to question number 28. आप लोग ये आंसर दो. A hollow charged metal sphere of radius r with the potential difference between the surface and the point at a distance of 3r is v. Then the electric field at a distance of 3r will be how much? So there is a hollow charged metal sphere of radius r. The potential difference between the surface and the point at a distance of 3r is v. The potential difference between this point and this point, and the potential over here be v1, v2. So v1 minus v2 is given as v. What is v1 का value? AQ by R. ये ऐसे लिखा जाएगा. सही है क्या? Yeah, तो sure. ये लिखा जाएगा k q by 3r minus r will become 2r by 3r square. ये कितना होता है? k q will become 3r v by 2. ये मिल गया मेरे को. Can you tell me what is electric field at a distance of 3r? Electric field at a distance of 3r क्या होता है? AQ by 9R square. k q मालूम है ना यहाँ से. k q की जगह मैं लिख सकता हूँ 3r v by 2 into 9r square. ठीक है ना? इजी इजी क्वेश्चंस है, फटाफट फटाफट हम लोग कंप्लीट करें. ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ. A and B are two thin concentric hollow conductors having radius A and 2a, having charge Q and 2Q and Q respectively. The potential of the outer sphere is 5e, the potential of the inner sphere is how much? So यहाँ पर this is radius A वाला, charge is 2Q. This is 2a.
charge is Q. The potential of the outer sphere is 5 volt. 5 volt. तो बता सकते हैं what will be the potential of the outer sphere? जनरल फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर का, आपको मालूम रहेगा, क्या हो जाएगा k इंटू टू क्यू बाय टू ए प्लस k इंटू क्यू बाय टू ए इज इक्वल टू 5. बोलो सही है क्या? Yes, sir. k इंटू थ्री क्यू बाय टू ए इज 5 है. ये इक्वेशन नंबर 1 पकड़ा जाएगा. वैसे ही पोटेंशियल एंड क्या मांगता है? पोटेंशियल इनर मांगता है. क्या हो जाएगा इनर? K k to टू क्यू बाय ए k इंटू क्यू बाय 2A. टू. यहाँ पर ये कैसे लिखा जाएगा? पोटेंशियल एट इन स्फीयर. कैन आई डिवाइड बोथ ऑफ देम? डिवाइड कर देंगे ना. ये कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये 4 बन जाएगा. 4 और 1 5 बन गया. बराबर है क्या? 5k क्यू बाय टू. सही है क्या? Yes, sir. और k क्यू बाय टू है यहाँ से लिखा जाएगा 5/3. देखो यहाँ से अगर मैं k क्यू बाय टू लिख सकता हूँ, ये 5/3 बन गया. हेलो यार, बोलो ना 5/3 होना. तो k क्यू बाय टू है, ये बना क्या बन गया? 5/3. तो ये हो जाएगा 25/3. तो सब एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, तुम लोग फटाफट कर सकते हो. हेलो, ये तो है, ठीक है ना? Yes, sir. नाउ 32 पर आता है. जस्ट वार्म अप होइए. इंग्लिश पढ़ने से अच्छा यही है ना भाई. है, अंडरस्टैंड? 32. टू चार्ज Q1 and Q2 are placed at 30 सेंटीमीटर. ये कर चुके हैं क्या पहले? ये सम किया है क्या पहले? खुद देखो. वो कितनी बार कर चुका मैं तो. सही नहीं. टू चार्ज Q1 and Q2 are placed at 30 सेंटीमीटर apart. A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 cm from C to D. तो क्या ना इसे पहले चार्ज C पर रखा है. ये A है, ये B है, 30 है, ये 40 है. तो इनिशियली चार्ज इज केप्ट हियर. सही है क्या? C पर. Can anyone tell me what is the potential at C? Due to these both charges, ये Q1 रखा है, ये Q2 रखा है ना. यहाँ पर एक चार्ज नहीं है. सपोज काम करो, तो इनिशियली चार्ज इधर रखा है. फाइनली कहना ही से ये A और B तो है ही चार्ज पे. ये चार्ज तो है ही. फाइनली चार्ज इधर आ गया. ये सेंटीमीटर कितना? ये 40 है ना पूरा. रेडियस 40 है देखो. अरे भाई ये 40 का रेडियस है ना पूरा. बोलो, ये 10 हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये फाइनल पोजीशन है. अच्छा, मेरे को क्या पूछा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी will be Q into V final minus V initial. Yes, sir. तो V initial क्या? VC है ना, इधर रखा है ना चार्ज. कैन आई से व्हाट इज VC? इसके कारण क्या रहेगा? K Q1 by 40 एंड दूसरे वाले का कितना रहेगा? K Q2 by 50 ना. और सब सेंटीमीटर में, वो कन्वर्जन बाद में करता हूँ मैं, ठीक है. पोटेंशियल एट D क्या रहेगा? K Q1 by 40 एंड K Q2 by 10 ना बेटा. हेलो, अब ये फाइनल हो गया. अब दोनों को माइनस कर दूं, अगर मैं उल्टा माइनस करूं, VC VD माइनस VC करूं, D माइनस C करूं, VD माइनस VC, तो क्या हो जाएगा? बोलो, बता सकते हो क्या? क्या उड़ जाएगा? ये तो उड़ जाएगा ना. Yes, sir. तो कौन सा चार्ज लेके जाने का है? Q3. तो Q की जगह Q3 लिखना है, और दोनों को माइनस किया तो ये मिला K Q2 by 10
माइनस के क्यू टू बाय, ये मिल गया क्या? तो ये हो जाएगा के क्यू टू क्यू थ्री बाई 50 माइनस 10, दैट इज 40 बाई 500 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, बिकॉज सेंटीमीटर में नीचे, यस और नो? ये उड़ जाएगा, ये बना 8, बराबर क्या? अच्छा, यहां पर ये बोल रहा है कि ये चीज दिया हुआ है, देखो मतलब Q3 है 1/4/ε0 है, तो बचा हुआ K है। तो यहाँ पर भी अगर आप फॉर्मूला में देखो तो Q3 गया, Q3 मिल गया, और K का वैल्यू 1/4/ε0 है, तो बचा क्या? 8Q2 बचा। Yes, sir. हेलो, 8Q2 मिल गया ना भाई? हेलो, यस और नो? Yes, sir. अरे थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ भाई, आ जा, बार बार एवरी टाइम वी नीड नॉट गो स्लो, ठीक है ना? चलेगा, चलो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। A point charge Q is placed at a distance r from the center O and the uncharged spherical shell of inner radius r and outer radius 2r. The distance छोटो r is less than बड़ो r. The electric potential at the center. क्या होने वाला है? आपको मालूम है, सबसे पहले इंडक्शन हो जाएगा। हेलो, यहाँ Yes, पर कितना इंट्रोड्यूस, इसके इनर सरफेस पे कितना इंट्रोड्यूस होगा? इनर सरफेस, हमें अभी कलर चेंज करना पड़ेगा। ये कितना इंट्रोड्यूस होगा? माइनस क्यू। ये कितना इंट्रोड्यूस होगा? बोलो, सही है क्या? yes, sir. अब बोलो यार फटाफट, पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा? पोटेंशियल किधर चाहिए, किधर मांगता है? एट द सेंटर। तो पोटेंशियल एट द सेंटर, अभी तीन तीन चार्ज है मेरे पास, बोलो फटाफट। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? के क्यू बाई छोटो आर, ये तो है ही। दूसरा वाला क्या है? माइनस के क्यू बाय बड़ो आर, बराबर क्या? और तीसरा वाला क्या रहेगा? के क्यू बाय टू आर। तो ये लिखा जाएगा के क्यू बाय छोटो आर प्लस के क्यू बाय टू आर, नहीं, माइनस के क्यू बाय टू आर, यस और नो? हेलो, ये लिखा आंसर मुझे मिल गया ना, गिनेंगे दोनों, इजी है। हेलो, हेलो 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 हेलो, Yes, sir. ठीक है, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 35 इज रिलेटेड टू फ्लूइड्स। तो अभी उसको पेंडिंग रखो थोड़ा, आपका फ्लूइड्स हो जाएगा अपने आप, वो समझ में आएगा, बिकॉज वहां का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है, फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला वहाँ आता नहीं है। तो 35 भी रहने दो, उधर लिख लो साइड में प्लीज, या तो आप जब रिवाइज करेंगे आपको पता चल जाएगा फ्लूइड्स के ऊपर। ओके, एक्सेस प्रेशर के ऊपर सम है वो। जब वो फ्लूइड्स आ जाएगा तो अपने आप वो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल है। एक्चुअली फ्लूइड्स में भी एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। ओके, तो जब वो चैप्टर आपका हो जाएगा फ्लूइड्स का, तभी आपको समझ में आ जाएगा, याद रखना भाई, पूछा जाता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आता है। मोर देन वन भी कर सकते हो तुम लोग, कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब इट इज अ रिवीजन ऑफ प्रीवियस टाइम ओनली। A particle of mass and charge q is thrown vertically in a direction v naught in uniform electric field, assuming gravity force to be negligible. So equation of the path followed will be how much? Okay. A particle of mass m and charge q is thrown in a vertical direction with velocity v naught in a uniform electric field. तो मुझे सबसे पहले क्या निकालने का है? ट्रैजेक्टरी इक्वेशन में टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम को फिर y के इक्वेशन में या x के इक्वेशन में मुझे सब्स्टिट्यूट करने का रहेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है क्या, कौन से डायरेक्शन में? Horizontal. ये फेंका है ऐसे क्या? तो बता सकते हैं कैसे जाएगा वो? हाउ विल इट मूव? बराबर क्या, ऐसे कुछ जाएगा? Yes, sir.
तो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन चाहिए एक्स और वाई के बीच में। चलो तो बता सकता है, कैन आई से वाई डायरेक्शन में, सपोज ये एक वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कॉमा वाई है, कैन आई से वाई के पास तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो ये हमेशा यही स्पीड से जाता रहेगा ना, ये वी नॉट तो यही रहेगा ना हमेशा। बोलो बोलो। Yes, sir. एंड यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करने वाला है, कितना एक्ट करेगा? क्यू ई। और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं क्यू ई बाय, ये तो वैसे ही है, तो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखेंगे इस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, सॉरी, कौन सा इक्वेशन लिखेंगे? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस विल बी We स्पीड not. इनटू टाइम। और एक्स डायरेक्शन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? कौन सा इक्वेशन काइनेमेटिकल लगेगा ना? S is equal to half a t square. हाफ ए टी स्क्वायर, ए इज क्यू ई बाय एम इनटू टी स्क्वायर। टी की जगह मैं ये उठा सकता हूँ क्या? करेक्ट है क्या? तो ये मिल गया ना आंसर, क्या है भाई इसमें? टू एम वी नॉट स्क्वायर क्यू ई वाई स्क्वायर, ए मिल गया क्या? हेलो। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी कैसे लिखते हैं आपको आता ही है कि just that way. Now we come to question number 39. Two large and parallel metal plates having separation of 1 centimeter is connected to a DC voltage source of potential difference X. A proton is released from rest midway between the two plates. It is found to move 45 degrees to the vertical just before touching the plate having lower potential. Then X is equal to how much? यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि देर आर टू प्लेट्स, प्लस और ये माइनस, सही है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में एक्स है। सेपरेशन बिटवीन देम इज 1 centimeter, सही। प्रोटॉन इज रिलीज्ड एट रेस्ट midway between, midway proton, here. It is found to move at 45 degrees to the vertical just before touching the plate. ये प्लेट को टच करने के, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, ठीक। then x is nearly हम, तो यहाँ से प्रोटॉन is at rest, x का वैल्यू मुझे, ठीक है। Okay, can you tell me what is acceleration in the x direction? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा, बोलो। Q E by M. ये तो है, कोई डाउट नहीं है इसमें। Can you tell me how much is can I apply kinematical equation? S दिया देखो, ये ऐसे क्या, एस एक्स है क्या? हेलो, Yes, sir. जो दिया है उसको यूज कर देना भाई। तो एस एक्स विल बिकम यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, टी विल बिकम अंडर रूट
ये मिल गया मेरे को। और क्या बोल रहा है वो लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ टाइम हो गया। अभी क्या बोल रहा है, इट इज मूविंग 45 डिग्रीज टू द ठीक। देखो मेरी बात सुनो, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा ये रब कर देता हूँ तो जगह नहीं रहेगा। फटाफट फटाफट हम लोग सब कर लें। 2 मिनट रुको। देखो एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पर, ये प्रोटॉन के पास चार्ज भी है और मास भी है। मेरी बात सुनो, चार्ज भी है मास भी है। चार्ज को कौन अफेक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक। जब वो इधर आएगा कि नहीं से, उसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगी, बराबर क्या? सपोज इधर, सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात कर रहा हूँ, क्लियर है क्या? यस सर। हेलो। और मास के कारण वो नीचे भी तो गिरेगा, ग्रेविटी के कारण, बिकॉज 45 डिग्री बोल रहा है, इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं और एक फील्ड है। हेलो। तो एक्चुअली यस क्या सर। हो रहा है, एक्चुअली वो ऐसे जा रहा है और इधर आके हिट कर रहा है, ये उसका रिजल्टेंट स्पीड है। ना इसी इसके पास दो चीज है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? अभी यस सर। चीजें एक बार आसान हो जाएगी ना तो फटाक से समझ में आ जाएगा ये चीज। और हमको मालूम है 45 डिग्री है, 45 डिग्री मतलब क्या, वी एक्स का वैल्यू और वी वाई का वैल्यू सेम है ना बेटा। एट 45 डिग्री वी एक्स का वैल्यू और वी वाई का वैल्यू सेम हो गया, इतना समझा क्या? हेलो 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 हेलो, बोलो यस यार। सर। अच्छा अभी वी एक्स निकालना आसान है क्योंकि वी एक्स में काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा। अच्छा वी वाई में भी वही लगने वाला है। हेलो। यस सर। क्या ना, इसे वी एक्स का फॉर्मूला क्या है? वी एक्स इज टी इक्वल बाई टू, एम इंटू टी। हाँ टी, मगर टी मालूम नहीं है। अगर दोनों साइड टी टी लिखोगा तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर टी मालूम नहीं है। टी मालूम नहीं है, क्या नहीं, इसे क्या बोलते हो आप? मैं एस मालूम है ना यहाँ पर तो। So can't we just equate the accelerations? आप बोल रहे हो कि हाँ ए टी कर सकते हो। यू वांट टू टेल दैट ए एक्स इंटू टी एंड ए वाई इंटू टी, ऐसी बात कर रहे हो आप? Yes, so then TT will cancel. हाँ ठीक है, ए एक्स का फॉर्मूला बताओ मेरे को। QE by M ए equal to वाई क्या G. रहेगा? जी। ओके, मगर मेरे को एक्स मांगता है ना बेटा। हाँ, एक्स चाहिए तो ये क्यू ई बाई एम हो गया और ये हो गया, तो कुछ मालूम थोड़ी है आपको। ई को लिख Can't सकता we हूँ मैं say वी E is बाई डी, V by D? वी बाई डी कर सकते हैं। ओके, वी इज एक्स ना एक्चुअली, तो एक्स विल बिकम डी एम जी बाय क्यू। सही है क्या ये? Yes, sir. डी इज 1 सेंटीमीटर, ये तो ठीक है। एम इज मास ऑफ प्रोटॉन, जी ग्रेविटी क्यू, ठीक है मिल गया। गिरेंगे ना, एन टू माइनस टू क्यू बाई एम। एम कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.6 into 10 raised to minus 27. चार्ज कितना है? सही है क्या? हेलो। Yes, sir. कितना होता है ये? 29, 29 और एक 28। क्लियर है क्या? ये आएगा, बराबर है क्या? इतना छोटा रिजल्ट, बराबर किया है ना हम लोगों ने।
नन ऑफ द अबव में जाएगा ना ये, मगर इतना छोटा वो रिजल्ट कैसे हो सकता है? जी डी बाय क्यू, क्यू ई बाय एम, बराबर है ना? लगना तो बराबर है ना? बोलो, कुछ बोलते नहीं हो, ऐसा कुछ। मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव में चला जाएगा ये फिर। ये कोई रिजल्ट, बिकॉज एम तो आएगा ही ना। सही। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 40. Charge 2q and 8q are placed at the ends points of A and B respectively of a 9 centimeter long straight line. A third charge q is placed at point C of AB such that the potential energy of the system is minimum. Minimum derivative. First derivative has to be 0. मतलब potential energy निकालो सिस्टम का और फिर बाद में उसको एक बार डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x. तो चलो भाई, ये क्या हो गया? 2q. ये क्या हो गया? 8q. और यहाँ पर बीच में किधर प्लेस्ड है? q. तो मालूम नहीं है, let this distance be x और this distance is going to become 9 minus x. ठीक है, कोई बता सकता है what will be the potential energy of the system? ये 1 2 3 है. potential energy of the system क्या रहेगा? k into 2q into q by X. x. k 2q into 8q by 9. 9. और तीसरा वाला k q into 8q by 9 minus x. सही है क्या? Yes, sir. ये मिल गया मेरे को। अब इसका एक बार डेरिवेटिव कॉमन क्या निकलेगा हमारा? k into AQ square. q स्क्वायर बाहर निकल गया, 2 by x. ये क्या बना? 16 by 9. 16 by 9. और ये बना 8 अपॉन 9 माइनस एक्स. चलो बाबा, अब इसका क्या निकालेगा? du by dx. इसको 0 इक्वेट करो. व्हाट इज du by dx? चलो बोलो. k q स्क्वायर तो बाहर आएगा. व्हाट इज 2 by x का डेरिवेटिव? माइनस 2 by x स्क्वायर. -2 by ये तो निकल गया, ये इसका कुछ माइनस 2 by x स्क्वायर. ये वाला टर्म तो आएगा नहीं. ये वाला टर्म का क्या आएगा? plus 8 by 9 minus x whole square. सही है क्या? इज इक्वल टू 0. यहाँ से निकाल सकते हो ना, 2 by x स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लो. बोलो, सही है क्या? Yes, sir. आदत हो गया रहेगा. This is all okay. We come to question number 41. ध्यान से. A solid sphere of radius r1 and volume charge density rho is equal to rho naught by इंटीग्रेशन वाला सम है, दिख रहा है? मैं भाई, चार्ज डेंसिटी जो है वो चेंज होता जा रहा है ना अंदर से. चार्ज चेंज होता जा रहा है ना अंदर से. enclosed by a hollow sphere of radius r2. नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब इसके बाद माइनस सिग्मा है. सही है क्या? So that total charge of the system is 0. Total charge on the system is 0.
and rho naught is positive constant distance of r at the center, then r2 by r1 बनता है, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है जीरो, मतलब क्या, जितना चार्ज सॉलिड स्फीयर के पास है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हॉलो स्फीयर के पास है, नेट चार्ज जीरो हुआ ना इसके लिए। मैं मेरी बात सुना, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r1, और इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी वेरी हो रहा है वो ये फॉर्मूला से वेरी हो रहा है, एंड एनक्लोज्ड बाय अ हॉलो स्फीयर, रेडियस r2, और उसके बाद नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। द टोटल चार्ज इन द सिस्टम इज जीरो, मतलब क्या, कैन आई से q1 प्लस q2 इज जीरो, Yes, sir. मतलब इनडायरेक्टली कैन आई से q1 इज माइनस q2 ना। अरे भाई बोलो यार, Yes, sir. क्लियर है क्या, Q1 ढूंढने गया है तुम्हारे को, Q1 चार्ज ढूंढना है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू R, ये अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, अगर इसकी बात करूंगा मैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक गो टू X, टेक एन एलिमेंट, कितना dx ना, Yes, sir. एंड इस चीज का चार्ज कितना रहेगा, Rho dV. इस चीज का चार्ज dq रहेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, बराबर कितना हो गया चार्ज, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4 पाई आर Pi स्क्वायर डी square dx. एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कर चुके हैं पहले भी, मैंने आपको बताया था। हेलो बोलो, Yes, sir. इट इज सरफेस एरिया इनटू लेंथ, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, वॉल्यूम विल बी सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम जीरो टू r1, q टोटल विल बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम रो 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो टू r1, सही है क्या, Yes, sir. कैसे लिखा जाएगा, किधर कैन आई से q टोटल इज गोना बिकम जीरो टू r1, रो की जगह क्या लिखेंगे, रो नॉट बाय r, और ये r दिया है तो इधर x की जगह r ही लिख सकता हूँ मैं, ये r के टर्म्स में ना बेटा। हेलो, Yes, sir. ये चलेगा ना ऐसे, तो r के टर्म्स में x के टर्म्स में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं इसको उड़ा दूं तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, R square by 2. 4 पाई r1 स्क्वायर बाई 2, बोलो, हेलो, Yes, sir. कैन आई से दिस चार्ज एंड द बाहर वाला चार्ज इज द सेम, हेलो, Yes, sir. ये वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द इनर स्फीयर। अच्छा, बाहर वाले चार्ज का सिग्मा कितना है, सिग्मा सिग्मा है, सिग्मा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ का Q Q2 क्या by. हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर में। हेलो, Yes, sir. कैन आई से Q1 इज इक्वल टू Q2 का क्या मतलब है, ये 2 पाई रो नॉट r1 स्क्वायर इज इक्वल सिग्मा 4 पाई r2 स्क्वायर। क्या हो गया यार, r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर कितना बना, 2 सिग्मा बाय रो नॉट, बोलो, हेलो, ये अच्छा वाला समय, ठीक है ना, हेलो, That will be the नहीं reciprocal, रो, right? रेसिप्रोकल, ये क्या हो रहा है, r2 स्क्वायर,
एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर क्या रहेगा? ये हो जाएगा ना? नहीं, So they have asked R2 by R1. अच्छा सॉरी। ये आंसर है, ठीक है। चलो, क्लियर है ना यार? ओके चलो, Yes. 43 पर आता है। 43 same, some equipotential surfaces are shown in the figure. The magnitude of the electric field in between them. अच्छा, मेरे को मालूम है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चलो मालूम है ना, मैंने आपको बताया था। ये देखो, ये दो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होती है। याद नहीं है क्या? It is the distance between them, ये distance, और the relation between them is what? ये V1 है, ये V2 है। Can I say E is equal to V1 minus V2 by D, where D is D perpendicular. Hello? Yeah, can I say Yes. D parallel to the electric field? D parallel बोल सकते हैं। D in the direction of electric field होता है। D is in the direction of electric field। ये दिख रहा है ना आपको? क्लियर है क्या? अब दोनों ऐसे टेढ़े हैं, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 का है क्या? देखो ना, 10, 20, 30, 40 है ना? हेलो? तो अगर मुझे 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 ये दो ऐसे, ये 10 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है, ये कहने से मुझे ये डिस्टेंस मिलता है। क्या सही है क्या? अरे भाई बोलो यार। Yes, sure. और कैन आई से दिस इज 10 सेंटीमीटर, आई नीड दिस डी। तो ई का फॉर्मूला इधर से एप्लीकेबल होगा ना फिर, वी बाई डी अगर होगा तो। चलो यार बोलो, कितना डिग्री है ये? 30 डिग्री है क्या? कैसे करेंगे? 10 sin 30. साइन 30 कितना हो गया? नहीं, ये Half. साइन 30 है। कैन आई से ये, एक मिनट, हाइपोटेन्यूज है तो साइन 30 विल बिकम डी बाई 10 सेंटीमीटर ना, सही है क्या? हेलो? Yes, sir. तो डी विल बिकम, ये हाफ हो गया तो 5 हो गया क्या? नहीं नहीं, डी कितना होता है? 5 हो गया ना? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? वी बाई डी। वी इज 10 बाई डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। हेलो? नहीं, ये दोनों सेंटीमीटर में ही है, वोल्ट पर सेंटीमीटर में दिया है क्या? हाँ, वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये मिल गया मेरे को। अच्छा, कहना इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज इट इज पैरेलल टू डी ना। बोलो सही है क्या? Yes, sir. So 2 volt per centimeter at an angle of 120 degree with the positive direction of the x axis in the anti-clockwise direction। क्या बोलते हो, ए है कि बी है? ये एंगल बोल रहा है, ये एंगल, ये एंगल कितना डिग्री होगा? 120 की तो होगा, सही है क्या? एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इसके ऊपर सम पूछा गया है, कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेके दे आर जस्ट फिलिंग इन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 44 पर आता है। 44 क्वेश्चन एक्चुअली खुद से भी कर सकते हो तुम लोग यार। Two small spheres of mass m1 and m2 are suspended by weightless insulating threads of length L1 and L2.
The spheres carry charge q1 and q2 respectively. The spheres are suspended such that they are in the level with one another, and the thread are inclined to the vertical at an angle of θ1 and θ2 as shown in the figure. Which of the following is essential for θ1 should become equal to θ2? कुछ भी नहीं है, वो बैलेंसिंग करने का। फिर सिंपल पेंडुलम में याद है हम लोग बैलेंसिंग करते थे। Yes, sir. तो t cos θ balances mg, ये चार्ज है ना, ये क्या रहेगा, mg रहेगा, m1g। नहीं से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। हेलो, ये क्या है, ये T1 है, ये क्या हो जाएगा, T1 cos θ, और ये हो जाएगा T1 sin θ। बराबर क्या, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, T1 cos θ1 balances m1g, balances m1g, and T1 sin θ1 is electrostatic force। ये सही है क्या, ये बराबर है? Yes, sir. तो अगर दोनों को डिवाइड मार देगी, याद है डिवाइड ही मारते हैं हम लोग, तो tan θ1 क्या होता है, Fe by P by M1G. m1g। वैसे ही अगर दूसरे वाले के लिए लिखने जाए तो ये पहले वाले के लिए, वैसे ही सेकंड वाले का तो कॉपी पेस्ट ही करने का है यहाँ से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो tan θ2 क्या होगा, और Fe सेम होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है ना भाई। हेलो, Yes, sir. अब ये क्या बोल रहा है कि θ1 θ2 सेम है, मतलब tan θ1 tan θ2 भी सेम है। अब θ1 θ2 सेम है तो tan θ1 tan θ2 सेम है, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि कैन आई से, अगर tan θ1 tan θ2 सेम सेम है तो Fe सेम कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, तो m1 m2 सेम हो गया। अरे भाई ये देखो ना, ये सेम होना चाहिए ना। हेलो हेलो हेलो, यस और नो? So, but why is it necessary that FE is horizontal? Because they haven't said that L1 and L2 are equal. वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा फिर, बोल रहा है ना क्वेश्चन में, दे आर एट द सेम लेवल, दे आर इन द सेम लेवल विद वन अनदर। पढ़ो तो थर्ड लाइन पे, So बराबर then है क्या? shouldn't L1 also be equal to L2? नहीं मगर θ1 θ2 डिफरेंट है ना, θ1 θ2 सेम है, बराबर है हाँ। L1 L2 सेम आ जाएगा। एक मिनट ना, अगर यहाँ से हम लोग कंसिडर करते हैं सो कैन आई से tan थीटा विल बिकम, this by this, theta will become x by y। अगर आप कह रहे हो 45 है, ये भी 45 है, ऐसे क्यों हो सकता है, मेरे हिसाब से तो समझ में नहीं आ रहा। सपोज एक छोटा पेंडुलम है और एक बड़ा पेंडुलम है, ऐसे बराबर है क्या? सुनो, क्लियर है ना ये बात हो रही है। अब अगर इसको दोनों को सपोज फोर्सेस लग रहे हैं दोनों के बीच में, तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, क्लियर है ये ऐसे। अब अगर Yes. दोनों एक साइड पे जाएंगे तो ये इधर आ गया, ये छोटा वाला है, यहाँ से ये छोटा उठाएगा, ये कम उठेगा ये लेवल से, ये थोड़ा ज्यादा, दोनों लेवल सेम उठ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है क्या? So but then the angles will also be different, right? But they've given that angles are same. So
L1 cos theta 1 has to be equal to L2 cos theta 2, and since theta 1 theta 2 are same, so L1 L2 also have to be same, right? L1 cos theta 1. हाँ सही है, ये आर्ग्यूमेंट सही है, बराबर है, ठीक है, अग्री। तो आंसर दोनों ऑप्शन में करेक्ट चला जाएगा, फिर यहाँ करेक्ट है बेटा, सही है। और कोई आर्ग्यूमेंट है किसके पास? सही है ना, L1 cos थीटा 1 शुड बिकम L2 cos थीटा 2, ये सही है आर्ग्यूमेंट। मतलब थीटा 1 अगर थीटा 2 सेम है तो L1 शुड बिकम इक्वल टू L2, सही है बेटा, ये वो दो ऑप्शन है। So could you explain that part? हाँ देखो क्या हो रहा है डायग्राम में, क्या दिया हुआ, ये सब छोड़ो, सिर्फ वो व्हाइट कलर का जो डायग्राम है उसमें देखो। व्हाइट कलर के डायग्राम में बेटा ये L1 है, ये L cos थीटा रहेगा ना, हेलो, Yes, sir. और ये L2 है तो ये L2 cos थीटा रहेगा, इतना मालूम है क्या? Yes, sir. और क्वेश्चन में क्या रहा है, ये दोनों सेम लेवल पर है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना, हेलो, Yes, sir. मतलब L1 cos थीटा 1 शुड बिकम इक्वल टू L2, बट थीटा 1 थीटा 2 सेम है, मतलब cos cos भी सेम रहेगा, बराबर क्या? Yes, sir. ये चीज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, और ये कर चुके हैं। So हम्म, in the last question, why will M1 and M2 be equal? M1 will be equal M1, see na, tan theta 1 and tan theta 2 are the same, Yes, sir. FE is the same, FE तो सेम ही रहेगा ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो जी सेम होता है ना, ये तो जनरल सम ही है, जनरली क्या है, L1 is equal to L2 है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आता है, फिगर शोज 3 spherical surface equipotential surface A, B and C around a charge Q। Q है यहाँ पर, तो कोई बता सकते है Q है अगर यहाँ पर तो क्या होने वाला है? यहाँ पर माइनस Induction. क्यू आएगा, इंडक्शन होगा, ये माइनस क्यू आएगा, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, बराबर है क्या? ऐसे कुछ होगा, ओके। आई नीड पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB। अच्छा, VA minus VB is nothing but like a generator, potential at A minus potential at B, okay, and VB minus VC। अच्छा, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर? जब दो चार्जेस होते हैं और ऐसे लिखते हैं हम लोग, याद है व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर आपको याद रहेगा तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, जनरल फॉर्मूला क्या है? KQ inside 1 by A minus 1 by B. पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम KQ 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB, ये RA और RB है ना, बोलो, Yes. सही नहीं है? बिकॉज इसका नेट चार्ज तो 0 है ना, बी वाले का, हेलो, नहीं समझ रहा है क्या? ये ए है और ये बी है, देखो ए के पास कितना चार्ज है, ये वाले का प्लस क्यू है, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी ए पूछा है, ये पॉइंट पूछा है, वी बी ये पूरा चार्ज रहेगा, करेंगे? Yes, sir. अच्छा, नाउ इनिशियली देखो इक्वी पोटेंशियल, यहाँ पे कह रहा था कि दे आर इक्वी पोटेंशियल, खाली जो आया है वो चार्ज क्यू के कारण है। अच्छा, क्या मैं इसको थोड़ा रीशफलिंग करके लिख सकता हूँ? डेल्टा वी विल बिकम KQ RB माइनस RA
आर ए आर बी, दिस इज बिटवीन ए एंड बी। हाँ, बराबर क्या, सही है क्या? अच्छा, सिमिलरली कैन आई से व्हाट विल बी डेल्टा वी बिटवीन बी एंड सी? के क्यू आर सी माइनस आर बी अपॉन आर सी आर बी। हेलो, तो ये क्या बोल रहा है आपको, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है? अगर सेम है इसका मतलब ये दोनों को अगर इक्वेट करो तो के क्यू कैंसिल हो जाएगा। कैन आई से आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी will become equal to RC minus RB on RC RB, बराबर है क्या? अच्छा, since they are equipotential surfaces, the distance between them is constant. Hello, ये that means RB minus RA and RC minus RB अभी तो सेम है, डिस्टेंस बिटवीन देम पूछा है। ओके सॉरी, ये डिस्टेंस को ले लो T1 RA RB और ये ले लो T2 RC RB। बराबर है क्या? हेलो, अच्छा कोई बता सकता है यहाँ पर कि कौन बड़ा है? सी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आर ए आर बी अपॉन आर सी आर बी, ये आर ए आर बी विल बिकम T1 बाई T2। अभी कौन बड़ा, आर ए के, आर ए बड़ा है कि आर सी बड़ा है? RC। आर सी बड़ा है, तो T2 बड़ा हुआ ना बेटा। हेलो, समझा क्या? Yes, sir. पहले क्या बोला, थे वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, फिर एक चार्ज अंदर रख दिया और चार्ज रखने के कारण इंडक्शन होगा, इंडक्शन के कारण वो जनरेटर का फॉर्मूला अप्लाई होगा और फिर देन यू अप्लाई एंड यू गेट द रिजल्टेंट आंसर। Fine. हेलो, Yes, sir. now uh, 46 करते हैं, चलो। Three concentric spherical shells of radius A, B, and C, so that A is shorter than B than C, having surface charge density sigma minus sigma and plus sigma. VA, VB, VC denote the potential for C is equal to A plus B. Easy है ये। Okay. हमको में चाहिए कि C is equal to A plus B के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ पर कहना है इसे, this is A, this is B, this is C. So sigma minus sigma and plus sigma. Okay. अभी सिग्मा के टर्म्स में अगर फॉर्मूला लिखना है, किसी को याद है सिग्मा के टर्म्स में अगर मैंने फॉर्मूला लिखना आपको सिखाया था तो कैसे लिखेंगे? पोटेंशियलिटी इनसाइड रहेगा तो क्या रहेगा, आउटसाइड रहेगा तो क्या रहेगा, किसी को पता है क्या? पोटेंशियल इनसाइड इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस। क्या होता है बेटा, फॉर्मूला याद है? इट इज के क्यू बाई आर ना, ये तो मालूम है कि नहीं? Yes, sir. क्यू को कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना लिखा जाएगा? Sigma R by अच्छा, के को epsilon लिख naught. सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई, ये हो जाएगा सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट, बराबर है क्या? हेलो, सिग्मा वन Into R. इंटू आर। एंड पोटेंशियल आउटसाइड क्या होगा?
क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू बड़ो आर स्क्वायर बाई r छोटो square by R। छोटा। ये याद रख लेना, नहीं याद है तो डायरेक्ट कर लेना, ठीक है ना? कैन यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल एट ए बी सी? पोटेंशियल एट ए क्या होगा? सिग्मा a by epsilon naught। सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरे वाले का माइनस सिग्मा, b by epsilon naught। ये सब इनसाइड ही है, बी बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सही है क्या? yes sir। तो पोटेंशियल एट बी लिखो, बी 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 सिग्मा b सिग्मा, by नहीं पहले सिग्मा ए स्क्वायर बाई बी ना, ओके, ए स्क्वायर बाई बी। दूसरे वाले का क्या रहेगा? माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है क्या? पोटेंशियल एट सी क्या बना? सिग्मा ए स्क्वायर बाई सी माइनस सिग्मा बी स्क्वायर बाई सी प्लस सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सही है क्या? और ये आई थिंक सो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, ये बराबर है क्या? yes sir। बाकी सब तो सही है, क्लियर है? ये चीज मैंने लिख ली। अब ये क्या बोल रहा है? अब क्या करने क्या? अब क्या करने क्या भाई? c is equal to a plus b। C is equal to A plus B to put over here. So C is equal to A plus B if I put, कितना होता है? ये कितना हो जाएगा तेरा? देखो 2 sigma a by epsilon naught। ये तो B भी कैंसिल हो जाएगा, 2 सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये भी है, मिल गया। VB के बारे में क्या ख्याल है? VB के बारे में C की जगह क्या पुट करना है? A प्लस बी। तो B वाला तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? सिग्मा A स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट B प्लस सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? yes sir। ये B मिल गया। VC के बारे में क्या ख्याल है भाई? C की जगह L पुट A प्लस बी। कितना लिखा जाएगा ये? C की जगह if I put A plus B तो ये क्या लिखा जाएगा? ये तो पता नहीं है, तो ये लिखा जाएगा सिग्मा A स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट A प्लस बी माइनस सिग्मा B स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट A प्लस बी एंड सिग्मा A प्लस बी एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा क्या ऐसे कुछ? हेलो, yes sir। अब यहाँ से ओके, एक काम करते हैं, अभी नंबर के फॉर्म में पुट करते हैं हम लोग। सही है ना यार? और कुछ नंबर के फॉर्म में पुट करेंगे। C इज इक्वल टू A प्लस बी, मतलब कैन आई से 1 प्लस 2 इज 3, जो भी है ऐसे पुट कर सकते हैं हम लोग, या 1 प्लस 1 इज 2 भी कर सकते हैं। A और B को 1 पकड़ लो एंड C को 2 पकड़ लो, ये चलेगा क्या? नहीं, बट B बड़ा है ना। हाँ, तो ये 1 प्लस 2 इज 3 डालेंगे, ठीक है? क्लियर है क्या? yes sir। ये कितना हो जाएगा नंबर? 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया ना, absolute। बराबर क्या? yes sir। ये क्या बना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1/2 प्लस सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो ये 3/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया ना। yes sir। ओके, तीसरा वाला क्या करना है? क्या सिग्मा A स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर हो गया
बाय एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी, एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी 3 होता है, माइनस सिग्मा बी स्क्वायर मतलब 4 हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी 3 होता है, सही है क्या? प्लस सिग्मा ए प्लस बी कितना होता है? 3 होता है बाय एप्सिलॉन नॉट। आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. कितना होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट 1/3 माइनस 4/3 कितना होता है? 4/3 माइनस 1/3 कितना होता है? Minus 1. 3/3 -1, तो माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया, हेलो, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना होता है? 2 sigma 2 by sigma by epsilon. epsilon. मैंने वैल्यू अभी बोलो, आंसर क्या है? वीसी और A. वीए सेम है ना, वीसी एंड वीए सेम है, देखो सही है क्या? Yes, sir. तो ये ट्रायल एंड एरर से सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द रिजल्ट। हेलो यार, क्लियर है ना? नाउ फोर्टी 49 48 वाला कर लेते हैं, चलो क्या दिया हूँ, चार्जेस Q 2Q and 4Q are distributed in 3 electric dielectric solid pairs 1, 2 and 3 are radius r by 2, r and 2r respectively. If the magnitude of the electric field at point P at a distance r from the centers 1, 2 and 3, यार ये तो इजी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पहले वाले का कितना रहेगा? आउटसाइड लगेगा ना, क्या लगेगा? के क्यू बाय आर R. स्क्वायर, सही है क्या? ई टू क्या रहेगा? ई टू क्या रहेगा? के, इट इज ऑन द सरफेस राइट। Yes, अच्छा, sir. 3 पॉइंट के लिए क्या ख्याल है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? K into 4. के क्यू आर बाय आर क्यूब ना, अरे अंदर है भाई, के क्यू आर बाय के क्यू एक्स बाय आर क्यूब होता है ना। Yes, sir. इज दिस ओके विद दिस? बोलो कितना होता है ये, 4 क्यूज 8 के क्यू बाय 2r स्क्वायर बराबर क्या, तो सबसे बड़ा कौन है? E2 सबसे बड़ा है, फिर E1 फिर E3, बोलो Yes, sir. क्लियर है ना? फॉर्मूला बेस्ड है यार, ये कर सकता है ना, कौन से चार्जर रखना है तो ये सभी भी है भाई, 50 three infinitely long charge sheets are placed as shown in the figure. The electric field at point P, अच्छा लास्ट शीट है, शीट के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सही है क्या? Yes, sir. इस सपोज ये 2 सिग्मा है, पहले एक एक करके लेता हूँ। 2 सिग्मा के कारण जो पॉइंट पी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितना रहेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ ये 2 सिग्मा वाले के कारण, बराबर क्या? Yes, sir. ये माइनस सिग्मा वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज ना, बोलो। Yes, sir. एंड तीसरा वाला जो इधर है सिग्मा प्लेस्ड है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? इधर रहेगी ना, हेलो बोलो, Yes, sir. सही कह रहे हो? तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सही है क्या? मैं गलत नहीं कर रहा हूँ? हेलो, Yes, sir.
ये आई थिंक ऑल आर प्लस ओनली, तीनों माइनस है। जरा बुक में देखो यार, बुक है क्या? टू सिग्मा इज माइनस। हाँ, 2 सिग्मा माइनस हो गया है, तो अगर ये माइनस है वरना तो जीरो आ जाएगा ना। हेलो, Yes, sir. ये माइनस है तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। ये भी बनेगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तीसरा वाला तो इधर ही है, Sorry, तीसरा वाला भी बना दिया मैंने ये। ठीक है, अब क्या हो गया आंसर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? सिग्मा में माइनस के कैप। बोलो क्या सही है क्या? अरे यार तीनों नीचे है, बोलो ना Yes, sir. बार बार वही है, वही 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 वही। ओके, यस। नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। For a solid sphere of radius r, total charge is q. Let the charge distribution will be rho is equal to qr by pi r4. Then the for point p at the distance r1 from the center of the sphere, the field is अच्छा, जब भी फील्ड व्हील के बारे में बात करेगा ना तो हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करने का, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी आर बार या डी एस बार इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर क्या? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर है and इसका टोटल चार्ज क्यू है एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंट वो दिया हुआ है। पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस r1, पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस r1, फील्ड इज, आई नीड द फील्ड ओवर हियर, बराबर क्या? हेलो, सही है ना? Yes, sir. इधर इधर मांगता है, पॉइंट पी पे फील्ड मांगता है, मतलब अंदर है। कैन आई से इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द चार्ज इनक्लोज दिस मच ओनली, ये चार्ज पे ही डिपेंड करेगा बिकॉज ये जो पट्टी है ना, ये बाहर वाली जो पट्टी है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है। हेलो, मालूम है Yes, ना, sir. ये जो पट्टी रहेगी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, सिर्फ अंदर वाले के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एंड दैट विल आल्सो बी रेडियली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने का, बोलो फिर सही है? ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी ई बार है, कैन आई राइट दिस एज ई डी एस cos थीटा, थीटा जीरो ना, बिकॉज एट एवरी पॉइंट इफ यू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो ये ऐसे ही बनेगा ना, यस और Yes, sir. क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो ये डीएस कितना है? ये छोटे छोटे टुकड़े अगर मैं जमा करूँ यहाँ पर तो इसका एरिया कितना रहेगा, सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का कितना होगा भाई? 4 पाई Root by R1 square. r1 स्क्वायर होगा, सही है क्या? ये क्यू एनक्लोज्ड विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये दिया है, ये r1 लिखो चलेगा, इनटू इनटू इट्स वॉल्यूम, ये करेक्ट है क्या? So we have to integrate it, right? नहीं, मगर ये दिया हुआ है ना डायरेक्टली, ये इसको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वही हो जाएगा जनरली। अगर आप देखने जाएंगे तो चलो इंटीग्रेट करते जीरो से लेके r1, जनरली इट विल बी द सेम थिंग अगर आप इंटीग्रेट करते भी। चलो बोलो, इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा? गौतम बोल रहा है इंटीग्रेशन करो फ्रॉम जीरो से लेके कहाँ तक, R1. बिकॉज वो अंदर की बात हो रही है ना, तो जनरली प्रॉब्लम नहीं है। क्यू इंटू r1 इंटू पाई r4, कैन आई राइट दिस रादर देन दिस, कैन आई राइट दिस एज, अभी यहाँ पर एक पट्टी कंसिडर करना पड़ेगा ना मेरे को,
कितना होता है पट्टी का? 4/r² dr। 4πr² dr। सही है क्या? हेलो, ये कितना हो गया? ये इंटू 4πr1² कितना होता है ये? Q πr4, और ऊपर से 4π भी निकाल दिया बाहर। ब्रैकेट में क्या बचा? r³ r⁴/4। हाँ, r³ हो गया, r³ हो गया ना, r³ हो गया, r³ dr आ गया, और उसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? ये सही है क्या? अच्छा। 0 से लेके r1 तक, तो ये क्या बना? ये इंटू 4πr1², q इंटू 4πr4, r1 4/4, 4π कैंसिल हो गया। ई का वैल्यू कितना आता है? q इंटू r1 4, r4 इंटू 4πr1², दिस इज छोटा r1, कितना होता है? q इंटू r1², 4πr²। ओके, क्लियर हो गया क्या? q इंटू r1², 4πr²। क्यों एप्सिलॉन नॉट नहीं होना चाहिए? क्यों? मेरे हिसाब से ये गड़बड़ है, जरा क्वेश्चन चेक करो यार। ये क्या है? सही है क्या ये? But it is QR1². ये QR1² है क्या? नहीं Upon नहीं, ये बराबर it देखो is ना बेटा। Q क्यों? QR by, sir, it is correct only. QR/πr4। Yes, sir. यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं बता रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊँ 4πr², q इंटू r/πr4, 4/4πr² dr, 4/r², ये मिला ये। एप्सिलॉन नॉट तो मैंने ही मिस कर दिया है, एप्सिलॉन नॉट आ गया। सही है क्या? q इंटू r1² एप्सिलॉन नॉट 4πr²। r² होना चाहिए। ये r4 है, r4 है सर, आ गया ना आंसर। r4 ही था वो, मैंने प्रिंट करके लिख दिया था, ये r4 आएगा। ठीक है, हेलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 and 56, 53 and 56 पर आते हैं क्वेश्चंस का। Listen to me. An electric dipole consists of two charges q and minus q separated by a distance of 2a. Its center is on the x-axis and x is equal to x1 and its point along x-axis in positive x direction. The dipole is in non-uniform field which is given by cxi cap. C is a constant. ये क्या बोल रहा है? एक डाइपोल है which has two charges plus q and minus q separated by a distance of 2a. Its center is on the x-axis at x is equal to x1 and its points along the x-axis in the positive x direction. तो उसका जो डाइपोल है, this is there along
तो इसका सेंटर जो है वो एक्सिस x1 पर है, एंड कैन आई से दिस इज माइनस q एंड दिस इज प्लस q बिकॉज डाइपोल मोमेंट जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ऐसे बोल रहा हूँ। ये सही है। The dipole is placed in a non-uniform electric field Cx I cap. तो x डायरेक्शन में एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सी डायरेक्शन में। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। कैन यू टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट करेगा वो कहाँ पर एक्ट करेगा? सो कैन आई से इट इज दिस सेपरेशन इज 2a, यहाँ से a हो गया, यहाँ से भी a हो गया, ये भी सही है। ओके एक तरीका, इजी तरीका ये है कि इसको इसको सिंगल चार्ज पकड़ो, ये यहाँ पे ध्यान रखो, इसको सिंगल सिंगल चार्ज पकड़ो। सपोज इसको मैं अगर सिंगल चार्ज पकड़ता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? देखो x1 माइनस a रहेगा ना, Yes, sir. यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x1 प्लस a, सही है क्या? Yes, sir. Can I say force on the charge is q into e at that moment, at that point? Can you tell me what is the force on the negative charge? q into You see electric field at that, हाँ, c x, but x is what? x1 minus a ना? हेलो बोलो, सही है क्या? And the force will be exerted in this direction because it goes in the direction opposite to the direction of electric field, सही है क्या? हेलो Yes, sir. क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? इट इज दिस वे। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज? You see x1 plus a to the right. नेट फोर्स कौन सा बनेगा? बड़ो माइनस छोटो। नेट फोर्स क्या बना? एफ ऑफ प्लस क्यू माइनस एफ ऑफ माइनस क्यू, क्यू सी एक्स प्लस ए माइनस x1 प्लस ए, माइनस साइन अंदर ले लिया, बराबर है क्या? Yes, sir. ये कैंसिल हो गया, करेक्ट है ना? ये क्या बना? क्यू सी इंटू 2a, एंड डोमिनेंट इस तरफ है तो ये नेट इधर ही जाएगा, बराबर है क्या? Yes, sir. बराबर है। अच्छा, व्हाट इज q इंटू 2a? p ना, p मोमेंट, तो cp आई कैप लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? Yes, sir. क्लियर है, बोलो क्या? So in option C and D, what is E stand for? नहीं, ये कुछ नहीं है, एक्स रहेगा, क्या है क्या मालूम? ये टाइपिस्ट हो रहा है, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा मुझे यार। ई एक्स कुछ नहीं है, वो नंबर होगा कुछ, 2x 2x 3x कुछ होगा, देखो जरा प्रिंटिंग में देखो। सर इन द बुक आल्सो ई दिया है, EX1. ये नहीं होगा बेटा, वो कोई नंबर होगा ना, 2x1 आई कैप, 2x2 आई कैप, 3x1 आई कैप। हेलो, ई के टर्म्स में कैसे आंसर आएगा? मगर वो आंसर ऑप्शन ही नहीं है ना, कोई ई का तो कोई मतलब ही नहीं रखता है।
हेलो, ई तो वेरिएबल दिया ही नहीं है ना क्वेश्चन में, किधर दिया ई, तो आंसर किधर आएगा ई। ठीक है यार, उसके बारे में क्या बहस कर रहे हो, ओके, कोई मतलब नहीं है उसका। Sir, in the अच्छा question ठीक they है, इस given E is equal to CX. ई इज इक्वल टू, अच्छा ये क्वेश्चन दिया है क्या, ई दिया है क्या इधर, ऐसे दिया है। हाँ तो ये ई का मतलब है, मगर उसका कोई मतलब नहीं है, चलिए ठीक है। It comes, मतलब वो क्या बोला, ई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, तो ई को सी एक्स लिख सकते हो, अगर एक्स तो है ही नहीं ना इधर इन द रिजल्ट, ठीक है। ओके, इसका ये मेथड नंबर 1 है, एकदम इजी मेथड है। मेथड नंबर 2 इज फोर्स ऑन अ डाइपोल, डायरेक्टली फोर्स ऑन अ डाइपोल। हेलो, इधर मैंने क्या किया, सिंगल सिंगल पकड़ा ना, एक को इसको पकड़ा और खींच लिया, बराबर क्या। अब डायरेक्टली फोर्स ऑन द डाइपोल इज P into d by dx ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो P into d by dx ऑफ dx। ओके, ये याद रखना, तो dy dx ऑफ ex क्या, ex क्या रहेगा, cx है ना बेटा, cx है कि नहीं है, तो Yes, sir. cx का c बन गया ना, तो cp बन गया कि नहीं बन गया डायरेक्टली, ठीक है। देखो ना यार, फोर्स ऑन अ चार्ज क्या था, q इंटू ई था कि नहीं था, Yes, बराबर है sir. क्या। अच्छा, इधर के q की जगह p रिप्लेसमेंट करता है, और आपको मालूम है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, देखो मेरी बात सुनो, अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है मैंने, तो कहना इसे इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगा और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगा, यस और नो, Yes, sir. तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो फोर्स विल बी ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स विल बी ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप एक डेरिवेशन दिया हुआ है, मैं आपको पेज नंबर दे देता हूँ, इसका पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, जस्ट वेट, 2 मिनट्स, जस्ट वेट, इसका डेरिवेशन कौन से पेज पर दिया हुआ है, 2 मिनट में मिल जाएगा, रुक जाओ। सुनो, डाइपोल, पेज नंबर 177, 177, वो डेरिवेशन है पूरा, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, दिस इज फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स है ये, और उसके हिसाब से ही आप लोग निकाल सकते हो जनरली कैसे एक्ट करेगा उसको, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अभी हम लोग एक लास्ट वाले सम की तरफ आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, ये कर लो।
चलो लास्ट क्वेश्चन बस. ओके. Disk of radius a by 4 having uniform charge distributed 6 coulomb in a xy plane with a center at minus a comma 0 comma 0 minus a comma 0 comma 0. A rod of length carrying a uniform charge 8 coulomb is placed on the x-axis at a by 4 to 5 a by 4. मतलब लेंथ कितना है इसका? अगर मैं स्पीयर ही पकड़ू, ये डिस्क पकड़ू बेटा, इसका रेडियस इज a by 4, मतलब कहना इसे ये a by 4 है. क्लियर है? और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस a by 2, तो कहना इसे ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? minus a by 4. ये कोऑर्डिनेट का काम है और कुछ नहीं है. और ये रॉड है जिसका लेंथ इधर है. Okay, it is placed at a by 4. This coordinate is a by 4 to 5 a by 4. कोई बता सकता है लेंथ कितना है इसका? 4 a by 4 ना, a है ना, बराबर क्या? 2 point charges minus 7 coulomb and 3 coulomb are placed at a by 4 minus a by 4 and minus 3 a by 4 plus 3 a by 4 and 0. Clear है? Yeah. Consider a cubical form surface of plus a by 2 minus a by 2, y also plus a by 2 minus a by 2 and z plus a by 2 minus a by 2. ठीक है, एक हम लोग यहाँ पर एक ये बना रहे हैं. ये y है, ये x है. Can I say this is minus a by 2 का, ये भी minus a by 2 बना, ये प्लस a by 2 पे बना. और दूसरे वाले चार्जेस कहाँ रखे गए? a by 4 minus a by 4 मतलब वो अंदर ही रहेगा कि बाहर रहेगा? ये वाला -7 कूलम, चलो अंदर है कि बाहर है? अंदर है. अंदर है. ठीक है, -7 कूलम जो है a by 4 minus a by 4 minus a by 4 मतलब -7 कूलम यहाँ पर है इधर. एंड आपको 3 कूलम के बारे में क्या ख्याल है? -3 a by 4 एंड प्लस 3 a by 4 बाहर है कि अंदर है? बाहर है. बाहर है. ठीक है ना, तो ये -3 a by 4 एंड 3 a by 4 ये इधर किधर बाहर रहेगा 3 कूलम, तो उसको काउंट ही नहीं करना. बराबर है? अच्छा ठीक है. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, Q enclosed by epsilon नॉट. अभी मेरे को खाली Q enclosed निकालने के, Q enclosed निकालने के लिए कहना से ये आधा डिस्क आने वाला है. ये आधा डिस्क का चार्ज कितना बैठा हुआ रहेगा? 3 कूलम. 6 कूलम टोटल चार्ज है, तो इधर कितना बैठा है? 3 कूलम. बराबर क्या? Yes, sir. अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये आधा रॉड भी है अंदर. हेलो, नहीं आधा रॉड है क्या? 1/4. 1/4 of the rod is there because this is from a by 4 to a by 2, that is a by 4 of the rod is there. So 1/4 of the charge is there. 1/4 मतलब क्या? 8 coulomb by 4 ना, that is 2 coulomb. फ्लक्स क्या रहेगा? चार्ज इनक्लोज कितना है? 3 coulomb इधर का, 2 coulomb इधर का और -7 coulomb by epsilon नॉट. बराबर क्या? तो -2 coulomb by epsilon नॉट. ये आ गया क्या आंसर? Yes, sir. ये जेई का ही क्वेश्चन, जेई मेन में पूछा गया था. आई थिंक सो इट इज ओके. क्लियर है ना भाई? हम लोगों ने जनरली पूरा कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट विद मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड. एक बार खत्म हो गया तो ठीक है. मैथ्स टू कॉलम सब्जेक्टिव नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम सब्जेक्टिव स्टार्ट करके खत्म कर देंगे. ठीक है ना? चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय. गौतम आपने एक क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ ठीक है गौतम, आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को. व्हिच क्वेश्चन वाज दैट? आई विल जस्ट सॉल्व इट राइट नाउ ओनली सो दैट विल बी बेटर. बाकी सब लोगों को लीव Actually, करना our है. exam right now, so अच्छा ठीक है, at 11. चलो
नहीं, आई थिंक सो यू हैव मिस्ड समथिंग। देखो 2 मिनट में बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, Yes, ये sir. कैपेसिटर था और ये रेजिस्टर था, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टर था, ये रेजिस्टर था, एक बैटरी थी यहाँ पर, और एक रेजिस्टर यहाँ पर था। बराबर है क्या? ऐसे कुछ सम था। हेलो, Yes, sir. टाइम कांस्टेंट वाज 3R/2, ये तो सही लिखा था आपने, ये सही था। प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि एट टाइम 0 अगर मैं बात करूँ तो ये कैपेसिटर किसकी तरह एक्ट करेगा? शॉर्ट। Short circuit. तो अगर ये शॉर्ट हो गया, तो अगर ये शॉर्ट हो गया तो आपको इसमें करंट देखने का। अब उसमें कैपेसिटर में करंट मत देखो। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट व्हिच इज फ्लोइंग ओवर हियर एट टाइम 0? तो अगर आप बना सकते हो तो यहाँ कैन आई V से by दिस इज V, 3R. ये V बाय, ये V/2 है, ये भी तो V/2 रहेगा। नहीं, ये V/2 नहीं रहेगा, कितना रहेगा? So the current will be V by 3R. इधर से करंट विल बी V/3R, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड। बराबर है क्या? Yes, sir. ये करंट इज V/3R, तो आई मैक्सिमम इज V/3R। अच्छा ठीक है, टाइम इन्फिनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? Open circuit. तो करंट कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? यही करंट है, ये करंट आई, दिस इज V एट by टाइम 0। 2R. हाँ, V/2R हो गया, सही क्या? Then we apply the formula, right, for exponential increase. हाँ, फाइनल वैल्यू प्लस डिफरेंस इन द वैल्यू e raised to minus t by tau। Got it, sir, got it. ठीक है ना? Yes, sir. फिर से भूल जाऊंगा, तो जो भी आंसर आया था वो देख लेना। ठीक है, चलो Yes. बाय। Bye, sir. Thank you. थैंक यू।